Welcome boys and girls, this is your host Tanveer Ahmed, and today we are dealing with a poem, When You Are Old, written by W.B. Yeats. Pronounce it as Yeats, not Yeats, okay? Well, um, let's first know our poet. He is the poet who got Nobel Prize in 1923. He is the first Irish to receive this prize. He belongs to Ireland, okay, and is also responsible for Tagore's Nobel Prize as well. In a way, he helped Tagore to get a Nobel Prize in literature by writing a preface to his book of devotional poems titled as Gitanjali. And in a way, we can say, boys and girls, that he introduced Tagore and his book of poems to English readers. Well, now let's come to our topic. Yeats. Yeats is a pioneer in modern poetry, boys and girls, and he wrote about mysticism, occultism, mythology, magic. He wrote about politics. He wrote about love and life. So his area of writing is very diverse, very vast. ठीक है, तो हम अब फोकस करते हैं इस प्रेजेंट पोम पे. द पोम इज एड्रेस्ड टू अ लेडी जिसका नाम है मॉड गॉन. Maud Gonne. This is Maud Gonne, not Mad Gone or Mad Gunny. Okay, it's Maud Gonne. Okay, and ये कौन सी लेडी थी? ये वो लेडी थी जिसके साथ येट्स प्यार करता था. But the love was one-sided. She never reciprocated the feelings of this poet. ठीक है, and इनका जो love था वो unrequited था. That means it was one-sided love. Okay, he fell headlong in love with this lady, and but she never accepted his proposal. He asked her to marry him several times. He tried to win her hand in marriage, but he was not successful, and every time he met with utter rejection. And finally this girl married a fellow revolutionary, because she herself was a revolutionary. She married John McBride. Okay, John McBride, and he was executed because of some controversy. ठीक है, in a case of conspiracy. ठीक है, एक साजिश के जुर्म में इसको फिर execute किया गया, and their marriage broke apart. It fell apart after just 2 years amid the allegations of domestic violence, because he was accused. इसको इल्ज़ाम लगाया गया था कि he is obnoxious in behavior, and ये domestic violence करता था इस पे Maud Gonne पे. He was not good with this lady. They have had some rifts after their marriage, and their marriage fell apart. Okay, तो फिर इनका divorce हो गया, and that's why sometimes W.B. Yeats compares this lady who is paragon of beauty, Maud Gonne, जो ब्यूटी का पैरागॉन है. ओके, ये इसको कंपेयर करता है विद हेलन ऑफ ट्रॉय. बॉयज एंड गर्ल्स, हेलन ऑफ ट्रॉय was a lady, Helen of Troy, who eloped with a Trojan prince by the name of Paris. Okay, तो ये पेरिस के साथ भाग गई थी. ठीक है, ट्रॉय भाग गई थी ये पेरिस के साथ, and she left her husband. But her husband chased her and Paris with a mighty army, with a huge army, and it brought devastation and destruction to the city of Troy. तो इससे क्या हुआ? Loss of life and loss of wealth. ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ, और जो ट्रॉय जो है इसके शहर को भी जो है बर्न किया गया था. So she was responsible for the loss of life, for the loss of property, because she made a silly mistake. Her mind was fickle. She was fickle-minded. She was having a wavering mind. Okay, she was so fickle, and she's compared with with Maud Gonne. Maud Gonne is also a paragon of beauty, and Helen of Troy was also a paragon of beauty. She is regarded as the most beautiful woman of the world. But she eloped with a fool, with a weakling Paris. So
पेरिस को कभी कभी मैकब्राइड के साथ येट्स कंपेयर करना है, तो इन कंपेरिजन को अगर हम देखना होगा तो वी कैन जस्ट रीड some of the poems of W. Yeats, like A Prayer for My Daughter or Easter 1916. You can find references of these things there. Well, let's move ahead. One day when they were having a chat, Yeats asked this lady that why do you not accept my proposal. ठीक है, आप क्यों हमेशा मुझे रिजेक्ट करते हो, रिफ्यूज़ क्यों करते हो हमेशा. एंड शी रिप्लाई दैट if I had not rejected you time and again, if I had not spurned you, abandoned you and forsaked you time and again, you would not have been a Nobel laureate. That means कि मैंने आपको बार बार रिजेक्ट किया, तो मेरी रिजेक्शन की वजह से जो आपको तकलीफ पहुंची, जो इमोशंस आप में आए, तो those emotions, those experiences flowed in the ink of your pen. ठीक है, those emotions came out in the form of the black ink, in the form of the poetry, and you were able to write such kind of poetry. Because as literature students, boys and girls, हमें ये याद रखना चाहिए कि literature does not come out of nothing. That means एक राइटर की राइटिंग के पीछे किसी का सपोर्ट होता है, कोई इंस्पिरेशन होती है. एंड दिस Maud Gonne, she was the muse, she was the inspiration behind his poetry, okay. And he was able to write his magnum opus. Magnum opus means greatest achievements, greatest works. Magnum opus, greatest works, greatest poems, because of this lady, okay. And she was also responsible to just get him the Nobel Prize as well, because in a way she helped him by rejecting him. ठीक है, तो that means sometimes rejections also are advantages for us. ठीक है, कभी कभी ये हमारे फेवर में भी टर्न होते हैं. इट्स अ ब्लेसिंग इन disguise sometimes, boys and girls. So when you meet with a rejection in your life, तो उस वक्त don't be downcast मत होइए, अफसरदा मत होइए, इसका पॉजिटिव साइड भी देखिए, क्योंकि कभी कभी इट्स अ ब्लेसिंग इन disguise. So जो लिटरेचर है, बॉयज एंड गर्ल्स, these unrequited love, these broken relationships and these personal crises, they work as a food for these poets' thought. ठीक है, तो ये इनको एक इंस्पिरेशन की तरह काम करता है इनकी लाइफ में. Now this poem is addressed to this lady, and इस पोम में जो इसकी थीम है, पहले इसकी बात करते हैं हम. पहली थीम जो इसकी है वो है टाइम डिफीट्स एवरीथिंग. And no one can escape the ravages of time. No one can escape the clutches of time. Time के पंजों से कोई नहीं भाग सकता है, ठीक है. And time passes quickly. It's a thief. Time is a thief. It passes quickly. We are young right now, and after 20, after 40 years, we'll be old. Our hair will turn gray, it will turn ashen, and जो हमारे चेहरे पे wrinkles would be there, okay, would be weak, okay. Now second जो इसकी जो थीम है वो है physical passion versus true love with spiritual basis. There are two kinds of love in this world. Some people love others just because of their physical beauty, physical appearance. उनका प्रोफाइल अच्छा होता है इसीलिए उनको प्यार करते हैं, because they want to gratify their sexual desires. तो उनके मन में यही होता है that this person would work as a vehicle for the gratification of my sexual desires. एंड जब वो सेक्चुअल डिज़ायर्स, वो बेस डिज़ायर्स, वो कार्नल डिज़ायर्स जब वो ख़त्म हो जाती हैं, बिकॉज दीज डिज़ायर्स जस्ट लास्ट टिल द पॉइंट व्हेन वी आर ओल्ड. जब हम बूढ़े हो जाते हैं फिर ये डिज़ायर्स जो ख़त्म होती हैं, तो हमारा प्यार भी ख़त्म होता है. इफ़ आर लव हैज़ दिस काइंड ऑफ बेसिस. बट इफ़ आर लव हैज़ अ स्पिरिचुअल काइंड ऑफ बेसिस, अगर हम किसी को स्पिरिचुअली लव करेंगे, उसके दिल से प्यार करेंगे, उसकी अदाओं से प्यार करेंगे, so that love never dies even when we are old. ठीक है, old age में भी वो प्यार ख़त्म नहीं होता है, because that doesn't have a mere physical passion, physical basis. ठीक है, वो love हमेशा जो है वो चलता रहता है. and third जो इसकी जो theme है, you can also say that its theme is love, loss and regret, because in this poem Yeats tells this lady, he even warns this lady that time will come in future that when you will regret
कि मैंने क्यों इसके प्यार को तर्क किया, मैंने क्यों इसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो आप अपनी डिसीजंस पे बहुत पछताओगे इन फ्यूचर। एंड नाउ ही हैज़ ऑल्सो यूज्ड अ डिवाइस ऑफ कंट्रास्ट। इसने कंट्रास्ट की डिवाइस भी यूज़ की है। एंड कंट्रास्ट किसके बारे में, किसके बीच में इसने किया है, यूथ वर्सेस ओल्ड एज। ओके, वो प्रिडिक्ट करता है मॉड गॉन को इन दिस पोम दैट राइट नाउ यू आर इन योर प्राइम, यू आर नाउ इन योर यूथ, यू आर वेरी ब्यूटिफुल, यू आर ग्रेसफुल, यू आर रिमार्केबल राइट नाउ। ठीक है, इस वक्त यू आर द पैरागॉन ऑफ ब्यूटी एंड thousands of people pursue you, they just follow you, you have lakhs of admirers as well, but there a time will come in future when you get old and जो ये सारे आपके followers हैं, they will just abandon you, they will just forsake you, because आपकी जो physical beauty है वो ख़त्म हो जाएगी, and जो आपके followers थे, जो आपको वो कर रहे थे, जो आपको pursue कर रहे थे, वो आपको छोड़ देंगे, because आप बूढ़े हो जाओगे। Then he also compares his own love with the with others' love. Others यहाँ पे जो दूसरे लोग हैं, other people जो प्यार करते थे, admirers of this lady Maud Gonne. He makes a contrast between his own love and the love of other people. For Maud Gonne, ये कहता है कि my love has a spiritual basis. I love you wholeheartedly. Okay, my love is unconditional. Yeats' love is unconditional, boys and girls. यही कहना चाहता है, माई लव इज़ अनकंडीशनल। मैं आपको प्यार करता हूँ, मुझे कोई जहन में कोई लालच नहीं है, कोई ग्रीड नहीं है। एंड येट्स लव इज स्पिरिचुअल, इट्स वार्म, इट्स it's devotional kind of attachment. He has a devotional kind of attachment to this Maud Gonne, boys and girls. And जो इन लोगों की जो love है, it's just a mere infatuation. ठीक है, एक पैशन है जो ख़त्म हो जाता है, जो फेड हो जाता है कुछ टाइम के बाद। ये बस एक क्रश होता है, एक इन्फैचुएशन होती है। इट्स जस्ट एन ऑब्सेशन, अ प्री ऑक्यूपेशन, एक ऑब्सेशन होता है, ठीक है, हमारे मन में, जो फिर कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाती है। दे लव because they love her physical beauty, physical nature of herself. But Yeats' love is something different, okay? And that's why Yeats says that his love will last forever, but she will not be able to just receive Yeats' love, because जो टाइम है वो चला गया होगा, और उस वक्त ओल्ड एज में येट्स इसको नहीं मिल सकता है। दैट मीन्स ये इसको बोलता है कि आप रिग्रेट करोगे फ्यूचर में। दैट मीन्स देयर इज़ टाइम, आप अभी आपको टाइम है, यू कैन एक्सेप्ट माई लव राइट नाउ। अभी मेरा प्यार एक्सेप्ट करो, आपको ये चीज़ें फेस करनी नहीं पड़ेंगी इन ओल्ड एज। इन ओल्ड एज यू विल बी ऑल अलोन, बिकॉज जो आपके एडमायरर्स हैं, दे विल लीव यू, दे विल forsake you, and उस वक्त you will just you will just desire that Yeats should be here, but he wouldn't be there, ठीक है। so it's high time to receive my proposal right now. तो Yeats ने इसको प्रपोज किया बहुत बार, but she did not receive she did not accept his proposal. And when her daughter was 23 years old, when she got 23 years old, he proposed her too. Her name was Isolde. उसका नाम था Isolde. He proposed Isolde as well, लेकिन Isolde ने भी इसको reject किया. Such is the predicament of this poet. And he जो येट्स है वो इतना प्यार करता था इसके साथ, मॉड गॉन के साथ, इवन आफ्टर मल्टीपल रिजेक्शंस ही बिकेम अ पेट्रन ऑफ हर डॉटर। एक सरपरस्त बन गया उसकी डॉटर का, बिकॉज शी वॉज एन ऑर्फन, बिकॉज मैकब्राइड लेफ्ट मॉड गॉन एंड ही वॉज एग्जीक्यूटेड in a trial, okay? So he kept loving her for his entire life, ठीक है, but she also continued rejecting him. This is the pathos, this is the predicament of this great poet, boys and girls. Well, now let's analyze this poem stanza wise. हम इसको analyze करेंगे, ठीक है। Now, boys and girls, we will analyze all these lines one by one, okay? मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा और मैं इसको पूरा रिसाइट भी नहीं करूँगा, क्योंकि you have the book, you can get it there.
और आप इसको समझ भी सकते हो। मैं थोड़ा डिफ़िकल्ट इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स और डिफ़िकल्ट फ्रेज इसमें यूज़ हुए हैं और जो पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुई है उन पे बात करूँगा, ठीक है। ना पहली लाइन में Yeats tells his beloved to just think about her beauty, about her youth. There will come a time, एक टाइम ऐसा आएगा when she will be old. पहली लाइन में he used a technique जिसको बोलते हैं फ्लैश फॉरवर्ड, ठीक है। एंड he also used टेक्निक उसको बोलते हैं फ्लैशबैक। तो सिमिल्टेनियसली ये दोनों टेक्निक्स इस पोएम में यूज़ करता है, इन स्टैंजाज में, इन लाइन्स पे यूज़ करता है। व्हाट डू वी मीन बाय फ्लैश फॉरवर्ड? बॉयज एंड गर्ल्स, फ्लैश फॉरवर्ड टेक्निक का मतलब होता है व्हेन राइटर टेक्स द नरेटिव फॉरवर्ड इन टाइम। जब स्टोरी को, किसी पोम को फॉरवर्ड इन टाइम में लिया जाता है, फॉरवर्ड इन टाइम। फॉर एग्जाम्पल, right now, ठीक है, Yeats is young and Maud Gonne is also young, but he wants her to think about the time in future when she'll be old. That means he takes this narrative forward in time, and flashback means simply backward in time, backward in time. पीछे जाना, to take the narrative backward in time, ठीक है। अभी जो है वो बोल रहा है इसको कि जब आप बूढ़े हो जाओगे, अभी वो बूढ़े नहीं है तो फ्लैश फॉरवर्ड है। फिर सिमिल्टेनियसली इसे बोलता है कि फिर आप सोच लेना कि जब आप यंग थे, दैट मीन्स फिर से इसको पीछे ले जा रहा है, पास्ट में ले जा रहा है, वो तो होगा फ्लैश बैकवर्ड। तो ये टेक्निक्स यहाँ पे यूज़ हुई है, तो प्लीज़ टेक नोट्स ऑफ दिस टू टेक्निक्स, इट विल फैच यू गुड मार्क्स, ओके। नाउ यहाँ पे इन द फर्स्ट लाइन्स इसको बोलता है कि एक टाइम ऐसा आएगा when you get old, when your hair will be grey, it will turn ashen, आपके चेहरे पे wrinkles आएंगे। तो उस वक्त क्या करना, उस वक्त take down this book. This book means love poems of Yeats, which he has written for Maud Gonne. तो अपने शेल्फ से मेरी ये बुक ऑफ पोम्स उतारना एंड उसको पढ़ना बाय द फायर साइड, ठीक है। जब उस वक्त आप ग्रे हो चुके होंगे, व्हेन यू विल बी नॉडिंग बाय द फायर, टेक डाउन दिस बुक, मेरी उस बुक को नीचे उतारना, इसको एंड रीड इट, ठीक है। कैसे पढ़ोगे इसको? स्लोली रीड, स्लोली क्यों? बिकॉज इट कंटेन्स द लव एंड द फीलिंग्स of William Butler Yeats, so pay attention to each and every word, ठीक है। इसीलिए slowly read and dream means to imagine, to think about, किसके बारे में? of that soft look means beautiful face, beauty of Maud Gonne को कहता है कि अपनी ब्यूटी के बारे में सोच लेना जब आप बूढ़ी हो जाओगे। एंड उसे बोलता है कि अपनी आँखों के बारे में सोचना कि आपकी आँखें कैसी थी। एंड देयर शेडोज डीप मीन्स थिंक अबाउट योर आइज इन फ्यूचर व्हेन यू विल बी ओल्ड, थिंक अबाउट योर आइज, इमेजिन अबाउट योर आइज दैट वंस योर आइज वर ब्लैक, आपकी आँखें गहरी थी, काली थी, दे वर डीप लाइक एन ओशन, दे हैड डेप्थ लाइक एन ओशन, ठीक है, जिसमें बहुत सारे जो आपके एडमायर्स है वो डूब गए थे, आपके प्यार में पागल हो गए थे, ठीक है। एंड दे वर हार्ट वार्मिंग, ठीक है, दे वर हार्ट वार्मिंग, देयर वाज हार्ट वार्मिंग एक्सप्रेशन इन योर आइज, ओके, योर आइज वर full of brightness, there was some kind of mystery in your eyes, shadows deep, ठीक है। ये अट्रैक्ट करते थे एक देखने वाले को, एक ऑन लुकर को आपकी आइज अट्रैक्ट करते थे, डूबने के लिए, अंदर जाने के लिए, आपको एक्सप्लोर करने के लिए। यू हैड सच काइंड ऑफ ब्यूटी इन योर यूथ। तो जब आप बूढ़े हो जाओगे इस सब के बारे में सोच लेना। तो यहाँ पे कुछ डिवाइसेस यूज़ हुई है बॉयज़ एंड गर्ल्स। यहाँ पे इसने डिवाइस यूज़ की है लाइक एनाफोरा की डिवाइस। सेकेंड एंड थर्ड जो लाइन है, इट बिगिन्स विद एंड जब when there is a repetition of a word or of a phrase
इन द बिगिनिंग ऑफ सम लाइन्स, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एनाफोरा। ये हमने इससे पहले भी किया है बॉयज एंड गर्ल्स, एनाफोरा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा। बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स एनालाइज सेकंड स्टैंजा। ओके, इसमें येट्स कहता है मॉड गॉन को, ही फॉर्म्स अ कंट्रास्ट, ठीक है, कंट्रास्ट फॉर्म करता है बिटवीन the admirers of Maud Gonne and between his own love, ठीक है, between his personal love for this lady। तो ये बोलता है कि there were some admirers, there were your followers who loved, how many loved your moments of glad grace, who loved the moments of your glad grace। Moments means time, glad means very happy, and grace means pretty। That means they loved you in a time, in a period when you were very glad, very happy, and when you were graceful, when you were pretty। जब आप खूबसूरत थे, जब आप बहुत खुश थे, जब आपके पास सक्सेस थी, जब आपके पास लक्ष्य थी, तब आपको वो प्यार करते थे, these ones। एंड वो आपकी ब्यूटी के साथ प्यार करते थे। एंड लव योर ब्यूटी विद लव फॉल्स और ट्रू, वो आपकी ब्यूटी से प्यार करते थे, हैंस देयर लव वुड बी आइदर फॉल्स और ट्रू, बट वी कैन से दैट देयर लव इज फॉल्स बिकॉज इट्स नॉट एवर लास्टिंग। क्योंकि जो इंसान किसी की फिजिकल एट्रीब्यूट से प्यार करता है, तो जब इंसान वो बूढ़ा हो जाता है तो वो प्यार खत्म हो जाएगा, ठीक है, हैंस देयर लव इज फॉल्स। एंड ही वॉन्ट्स टू जस्टिफाई हिज ओन ट्रू लव, हिज अनकंडीशनल लव फॉर दिस लेडी। इसलिए कहता है, बट वन मैन लव्ड पिलग्रिम सोल इन यू। पिलग्रिम सोल मीन्स सोल को यहाँ पे एक पिलग्रिम के साथ कंपेयर किया गया है। सोल इज कंपेयर विद अ पिलग्रिम विच जर्नीज इनटू दिस वर्ल्ड फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड, ठीक है, एंड गोज बैक टू दैट वर्ल्ड व्हेन वी डाई, ठीक है। जिस तरह हम किसी जगह पिलग्रिमेज पे जाते हैं, इस तरह जो सोल है ये हमारे अंदर एज ए पिलग्रिम आता है। सो देयर वाज अ पर्सन, देयर वाज यीट्स हु लव्ड योर पिलग्रिम सोल, हु लव्ड योर ब्यूटी, इनर गुडनेस, हु लव्ड योर प्योर सोल, प्योर हार्ट, ठीक है, जो आप सिर्फ आपको फिजिकली प्यार नहीं करता था, फिजिकल ब्यूटी के लिए प्यार नहीं करता, आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए प्यार करता था आपको। हैंस हिज लव इज नॉट फॉल्स, हिज लव इज ट्रू। यहाँ पे एलिट्रेशन की डिवाइस यूज हुई है, ग्लैड ग्रेस, जब इसने यूज किया मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस, ग when there is repetition of consonants in the beginning of some words in a line, boys and girls, उसको हम बोलते हैं alliteration। तो यहाँ पे हमने इसको एक्सप्लेन किया थोड़ा सा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पे। Now let's analyze these lines। And loud the sorrows of your changing face, he is continuing, ठीक है, जो कंटिन्यू कर रहा है कि एक इंसान था जो आपको बहुत प्यार करता था, ठीक है, जो आपकी सिर्फ फिजिकल ब्यूटी के लिए प्यार नहीं करता था, आपकी स्पिरिचुअलिटी को भी प्यार करता था, आपकी इनर गुडनेस को भी प्यार करता था। एंड दैट पर्सन हेट्स हिमसेल्फ एंड ही आल्सो लव्ड द सॉरोज ऑफ योर चेंजिंग फेस। सॉरोज ऑफ योर चेंजिंग फेस, बॉयज एंड गर्ल्स, मीन्स दैट ओनली ही न्यू when her face showed signs of joy and sorrow। सिर्फ उसको पता चलता था कि कब मॉड गॉन खुशी में है, कब वो गम में है। जब वो खुश होती थी, उसके चेहरे पे वो मार्क्स आते थे, साइंस आते थे, ब्राइटनेस आती थी, तो उसको लगता था कि ये खुश है। और जब वो दुखी होती थी, येट्स को वो भी पता चलता था। दैट मीन्स ही लव्ड हर थॉरोली, एंड वो इसको अच्छी तरह जानता भी था, ठीक है। देयर वाज अ सोल टू सोल कनेक्शन, देयर वाज अ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बिटवीन दीज टू पीपल, ठीक है। देयर वाज अ काइंड ऑफ टेलीपैथिक कनेक्शन बिटवीन दीज टू पीपल, ठीक है। इनके बीच में एक टेलीपैथी थी, उसको फील होता था, ठीक है। एंड फिर उसको बोलता है, एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बार्स, बेंडिंग डाउन beside the glowing bars। यहाँ पे भी एलिट्रेशन यूज हुई है, बेंडिंग डाउन बिसाइड, ब जो कंसोनेंट साउंड्स है ये रिपीट हुए हैं। यहाँ पे एलिट्रेशन भी यूज हुई है और यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स भी यूज हुआ है। कॉन्सोनेंट्स होता है बॉयज एंड गर्ल्स, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये स्टार्टिंग में रेपिटेशन नहीं होती है, कॉन्सोनेंट्स रेपिटेशन होती है कहीं पे भी एक पोइटिक लाइन में। सो रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स मीन्स कॉन्सोनेंट्स, बट एनीवेयर। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये रेपिटेशन जो है बिगिनिंग में ही हो। अगर बिगिनिंग में रेपिटेशन है, दैट मीन्स एलिट्रेशन। अगर बिगिनिंग के अलावा कहीं पे रेपिटेशन है कॉन्सोनेंट्स की, दैट इज कॉन्सोनेंट्स। यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स यूज हुई है बॉयज एंड गर्ल्स। यहाँ पे एन, ठीक है, इसकी भी रेपिटेशन है, तो ये भी यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स ही है। सो लेट्स एनालाइज these three lines very quickly, okay, because we are running short of time। And
murmur इसको बोलता है and murmur a little sadly how love fled. Murmur means to speak softly. murmur करना उस वक्त जब आप बूढ़े होंगे, अब you will be sitting besides the glowing bars. Glowing bars means fireplace. ठीक है, जिस चूल्हे के सामने आप बैठे होंगे सर्दी में, तो आप वहाँ पे थोड़ा बहुत धीरे से स्पीक करना कि how love fled. हाय ये प्यार किस तरह उड़ गया, चला गया. Love escaped from me. The people, my admirers, they abandoned me. They left me alone. There is no one with me right now. In my youth, there were thousands. ठीक है, तो how love fled, यहाँ पे personification यूज हुआ है. Love is compared to a person who can just move from one place to another place. We can just journey from one place to another place. तो यहाँ love को यहाँ पे personify किया गया है. Love is personified here. That means यहाँ पे device of personification use हुई है. Personification means when we use some human qualities to some non-human objects. ठीक है, उसको बोलते हैं personification. भाई इन दो लाइन्स की दो इंटरप्रिटेशन है बॉयज एंड गर्ल्स. दो इनकी मीनिंग्स है. पहली मीनिंग how love fled and paced upon the mountains overhead and hid face amid a crowd of stars. इसकी दो मीनिंग है कि आप सोचोगे हाउ लव फ्लेड, किस तरह इन सब का प्यार चला गया, ख़त्म हो गया. अब मेरे पास कोई एडमायरर ही नहीं है, कोई मुझे प्यार करने वाला ही नहीं है, और ये प्यार बहुत माउंटेन्स के ऊपर चला गया. ठीक है, यानी कि माउंटेन्स की बात नहीं हो रही है लिटरली, यानी कि उनका जो लव है इट्स आउट ऑफ रीच ऑफ दिस लेडी ऑफ मॉड गॉन. अब वो उनका प्यार नहीं पा सकती है बिकॉज देयर लव हैज़ वैनिश्ड, बिकॉज शी इज़ नाउ ओल्ड. They cannot love her anymore because they loved her external beauty only. ब्यूटी खत्म हो गई, उनका लव खत्म हो गया. ठीक है, अब दूसरी मीनिंग इसकी ये है कि how love fled and paced upon the mountains overhead and hid a face amid a crowd of stars. ये अपनी लव की बात कर रहा है, ये इसकी दूसरी एक्सप्लेनेशन है. ये अपने लव की बात कर रहा है कि आप सोचोगे कि किस तरह मुझे जो चाहने वाला था वो मुझसे दूर हो गया. ठीक है, how love fled and paced upon mountains overhead, और बहुत मेरे रीच से बहुत दूर चला गया. ठीक है, and hid its face amid a crowd of stars. और किस तरह ये love evaporate हो गया है. ये love जो है ये just ascended towards the skies, और ये एक crowd की कंपनी में बैठ गया. ठीक है, and it is now shining brightly among a crowd of stars, among a congregation. ठीक है, of stars. तो that means ये अपने लव को कहता है इट्स एवर लास्टिंग. जिस तरह स्टार्स जो है वो बहुत टाइम तक रहेंगे, दे आर एवर लास्टिंग. ठीक है, दे आर लॉन्ग लास्टिंग. इसी तरह मेरा लव भी इट्स लॉन्ग लास्टिंग. ठीक है, इट विल बी देयर, इट विल एग्जिस्ट देयर. मेरा लव आपके लिए हमेशा रहेगा, बट इट विल बी आउट ऑफ रीच. आप उसको नहीं पा सकोगे आप, बिकॉज उस वक्त टाइम जो है वो चला गया. बिकॉज टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन. आप उस वक्त बूढ़े हो चुके होंगे, तो इस वक्त आपने मेरे प्यार की कदर नहीं की. मैं उस वक्त भी तुम्हें प्यार करूँगा, लेकिन उस वक्त तुम मुझे पा नहीं सकोगे, बिकॉज मेरा प्यार बहुत दूर माउंटेन्स के ऊपर भी और स्काइज के ऊपर भी चला गया होगा, आउट ऑफ योर रीच. यू कैन नॉट receive my love at that time. That means in the last two lines he wants to make her imagine that how that love is hiding between the stars in the heaven, and his love will always remain shining for her, but beyond her reach. तो ये इसकी रीच से परे हो गई, ये इसको नहीं पा सकता है. ठीक है, एंड इसमें इमेजरी भी बहुत यूज़ हुई है बॉयज़ एंड गर्ल्स. इफ़ यू कैन एनालाइज इट एंड आइडेंटिफाई द लाइन्स जहाँ पे इमेजरी यूज़ हुई है, जब इसको बोलता है कि when you are old and grey and full of sleep, तो हमारे सामने एक बूढ़ी औरत की तस्वीर आती है. इट्स इमेजरी. ठीक है, सॉरी मैंने इसको गलत प्रोनाउंस किया इससे पहले वीडियो में भी, और इस वक्त भी गलत प्रोनाउंस किया था. इट्स इमेजरी, नॉट इमेजरी, इट्स इमेजरी. ओके, तो इमेजरी भी इसमें यूज़ हुई है. ठीक है, इमेजरी क्या होती है, जैसे वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड किया है यूट्यूब चैनल पे आप वो देख सकते हो. I hope you have learned all important details about the film. Keep studying, keep learning, keep enjoying.